Okay, so a very good afternoon to all my dear students. So, like you all know, today we are revising unit number 2 for the subject e-commerce and digital marketing. Class is TYBMS Marketing B Division, and myself here Jalundwala. Today I am going to take your revision lecture. Even though I haven't taught you this, students, still for your convenience I am taking the revision lecture. Fine. So, students, unit 2 is basically divided into three parts. Okay. So, the first part, if I will tell you, it is nothing but e business. So, like you all know, students, e business ka meaning everyone knows. Any activity in which profits are involved. Correct, there is buying and selling happening. So, buying, selling ho raha hai means what? There is a buyer, there is a seller. Correct. So, first of all, e-business, electronic means you all know. Best examples are Amazon, Flipkart, Nykaa. So now if I will tell you students ki what are the launching an e-business. मतलब for example हम खुद का online business we want to do. So we have to first of all think about many things, like for example planning, like I have told you is required in each and every activity, ki which product we want to sell. Like for example, how Nykaa is into cosmetics, how First Cry, you might have heard. First Cry normally sells baby related जो बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं वो, राइट तो उसके लिए वही कहा है कि हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लिखा है स्टूडेंट्स ई प्रोक्योरमेंट. ओके, ई प्रोक्योरमेंट का मीनिंग क्या होता है? वेयर आर वी प्रोक्योरिंग मीन्स बेसिकली हम मटेरियल्स कहाँ से खरीद रहे हैं. प्रोक्योर मीन्स टू ऑब्टेन समथिंग. ओके, फिर बिजनेस मॉडल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. बिजनेस मॉडल, इट इज जस्ट लाइक इफ आई विल टेल यू लाइक बिजनेस प्लान. हम देखते हैं स्टूडेंट्स, लाइक देर आर मेनी इन्वेस्टर्स बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन आवर बिजनेस, ओके, सो वो लोग पहले हमारा बिजनेस मॉडल चेक करेंगे. मीन्स व्हाट? बेसिकली लाइक फॉर एग्जाम्पल how convincing your business is. Like for example Nykaa है. ओके, सो फ्यूचर में जो भी कंपनी होते हैं, इन्वेस्ट किया है उन्होंने, इनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट दे नॉर्मली सी इज ये बिजनेस का हाउ ब्राइट द फ्यूचर इज. लाइक मुझे इसमें पैसे लगाने से क्या फायदा हो सकता है, राइट? फिर ब्रांडिंग डिसीजंस मींस बेसिकली इफ आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट प्रॉपर वे में प्रमोशंस एंड ऑल. इसमें एंड में स्टूडेंट्स इफ आई विल टेल यू देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ this website designing also. Okay, so उसमें वही कहा है स्टूडेंट्स. ऑनलाइन मार्केट प्लेस, online stores, online communities means what students? Community is nothing but a group of people, if I will tell you, right? And online companies means companies भी जो होती है nowadays they have their own websites, right? इनके अलावा आप देखो कई बार even WhatsApp पे buying selling होता है, right? So that is what students, I hope you all are understanding. E business में ये क्या सब आता है, at least the basic meaning you have understood. Okay, so now let me share the next slide. So now students, we are going to study about e business in detail. Okay, yeah, I hope the screen is visible, students. So the first concept that is told, I'll go as per the textbook, okay, is data warehouse. अब इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? ओके, इन दिस, ओके नाउ सी हाउ इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो स्टूडेंट्स, इसमें CRM का कंसेप्ट आ जाता है, ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो नाउ इफ आई विल टेल यू बेसिकली, सो स्टूडेंट्स, there was a term in CRM, if you remember, OLAP, online analytical um, processing, if you remember.
तो सेम वे देर इज वन मोर कंसेप्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. सो इसमें क्या होता है, डेटा वेयर हाउस मीन्स व्हाट, प्रॉपर वे में. ओके, यहाँ पे इट्स रिटन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर विद इन द फर्म. मीन्स आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज बेटर टू सेव अवर डेटा ऑनलाइन, राइट. प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग एंड ऑल होना चाहिए. So that is what is told over here, like ECRM softwares and all, you basically know. यहाँ पे CRM का भी लिखा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. उसके वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल स्टूडेंट्स, राइट. सो ये पॉइंट्स आई एम नॉट टीचिंग इन डिटेल. Okay, next concept is supply chain management. You know very well SCM students, you have the subject of logistics. Supply chain का main intention यही होता है students कि customer जो है, okay, in order to make sure that the customer जो भी products या goods है, he or she receives it on time. Okay, that is what is told over here. That is very important students, because if he or she is not receiving an on time, what's the ultimate aim, right? Proper communication at all levels होना चाहिए, right. There is now a concept of ERP, enterprise resource planning. Like, you know, iska simple example if I will give you, I always keep on telling you, like for example during festival seasons and all, you all know very well students क्या होता है normally, you know, the demand for products increases. Like आप देखोगे अभी very soon Diwali will come, correct. So normally during Diwali time आप देखो the purchases like maybe smartphones जो है, okay, air conditioners है, इनका sales काफी बढ़ जाता है. So you know accordingly they have to plan the inventory कि you know how much stocks I need to have. कई बार आप देखते हो Amazon and all वाले, like I have told you, what they normally do is students, you know, ऐसे टाइम पे दे अपॉइंट एक्स्ट्रा स्टाफ ऑल्सो, राइट. तो ये सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग, तो उसमें वही कहा है स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर वे में, देयर इज अ सेइंग इफ आई विल टेल यू, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर. अब इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, एप्पल अ डे मगर मीन्स अगर हम स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर्ड है, ओके, तो आगे जाके प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है. यहाँ पे वही लिखा है, कोलैबोरेशन. यू नो बिजनेस, ऑल बिजनेस स्टूडेंट्स दे आर बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या है, हाउ वेल वी आर कोलैबोरेटिंग, मतलब टीम वर्क कैसे कर रहे हैं विथ अवर पार्टनर्स एंड ऑल. बिजनेस इंटेलिजेंस मीन्स हियर दे आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस. Correct? I hope it's clear, students. E-commerce, you know very well, we have studied it in the third and fourth unit, right? So now let me share the next slide with you. अब ये जो first concept हमारा हो चुका है students. Now second concept that we are starting is brick and mortar model of business. Okay. Try to understand students, brick and mortar. I think I might have told you this in strategic management when I was teaching you in second year. Still okay, let us see आप लोगों को अगर याद है कि नहीं. Okay. हाँ. Now students, if you see for example, you know एक मॉडल है, ब्रिक एंड क्लिक. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. आप लोग नाइका का ही एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स, बेस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग. लाइक सी आई हैव सीन, आप देखो नाइका के फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के वेबसाइट्स भी है, एंड एट द सेम टाइम दे आर हैविंग देयर ऑफलाइन स्टोर ऑल्सो. लाइक इफ यू गो टू फिनिक्स मॉल कुर्ला, they are having their own offline store also. Now why I am telling you this is students, because you know, some customers, okay, what they prefer is कि नहीं online I'm not sure about making purchase decision. Especially girls can relate to it, because क्या होता है, हम online for example if we are seeing a particular product, for example हम foundation खरीद रहे हैं, right. So online पता नहीं चलता है कि मेरी skin tone के साथ which shade will match. हम बोलते हैं ना कि उसके लिए बेसिकली यू नो ऑफलाइन स्टोर में जाके, कुछ कस्टमर्स होते हैं दे लाइक दैट टच एंड फील एक्सपीरियंस, एंड ऐसा होता भी है स्टूडेंट्स, बॉयज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ऑलवेज, कई बार वेबसाइट्स में साइजेस का मिसमैच हो जाता है, करेक्ट. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर.
तो brick and click business basically means what, students? Along with online, okay, solutions, you are having offline stores also. That is something very important. I hope you all are understanding. तो brick का meaning क्या है? Physical stores. And click का meaning क्या है? Online business. Like I told you students, in today's time, both of them having a proper balance, दोनों होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो अब टेक्स्ट बुक में मैं अगर आपको बताऊं, द कंसेप्ट दैट इज टोल्ड ओवर हियर इज ब्रिक एंड मॉर्टार मॉडल. ओके, सो इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टूडेंट्स, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, ओके, जैसे कि मैंने कहा, कस्टमर्स नाउअडेज, यू नो, स्टिल स्पेशली आप, यू नो, इंडिया में कंसिडर करते हो स्टूडेंट्स, people are like, you know, they are local in nature, means they like to personally visit somewhere, try something. You know, हम बोलते हैं ना, आई स्टिल नो मैनी पीपल अभी भी ऑनलाइन वो ऐप से ऑर्डर नहीं करते हैं. व्हाट दे टेल यू बेसिकली इज, यू नो, कि नहीं नहीं, आई, यू नो, पर्सनली प्रिफर टू फिजिकली गो टू अ स्टोर, समथिंग लाइक दैट. तो इसका यही डिसएडवांटेज होता है स्टूडेंट्स की, यू नो, लिमिटेड रीच, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट? बिकॉज नॉर्मली स्टोर्स में, आई हैव टोल्ड यू, रिटेल मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, यू माइट हैव हर्ड. इंडिया में स्टिल, यू नो, इफ यू सी, प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं हो पाते थिंग्स, स्टोर के इन्वेस्टमेंट भी. लाइक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, कोविड के टाइम में, यू नो स्टूडेंट्स, द रेंट्स आर सो हाई, स्पेशली इन मुंबई, आप कोई भी शॉप में जाओ. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, हाँ. फिर नेक्स्ट, इफ आई विल टेल यू, ब्रिक एंड क्लिक फर्म्स मीन्स, लाइक आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स, ऐसे बिजनेसेस लाइक नाइका का एग्जाम्पल है. इवन, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू, टेक दिस क्रोमा का ऑल्सो एग्जाम्पल. क्रोमा जैसे, आई होप यू नो व्हाट इज क्रोमा एंड ऑल, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, दे आर सेलिंग दैट, राइट? तो इनका भी अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन इनके खुद के वेबसाइट्स भी है, but at the same time offline stores they are also having. कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक दैट, तो उनके लिए ऑफलाइन अच्छा पड़ेगा, राइट? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. अब मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बेसिकली. ओके, दिस इज वेरी इजी. ये तो मैंने कहा इन डिटेल, दे हैव टोल्ड कि ई प्रोक्योरमेंट में क्या होता है. e-communication, you all know very well students, like for example, you know, CRM and all, like for example through call centers feedback. Now see, it's such a huge advantage कि मैं आपका ये subject ले रही हूँ students, right? Because again, luckily I have explained you these things, so it becomes so simple for you to understand, राइट? तो इसमें एक और एक कंसेप्ट है ऑक्शंस का. लाइक यू माइट हैव हर्ड ऑफ ईबे एंड ऑल स्टूडेंट्स. ऑक्शंस मीन्स व्हाट, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यू नो, ऑनलाइन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल सम पेंटिंग्स, वी ऑल हैव सीन फिल्म्स में एंड ऑल, ऑक्शंस, बोली लगती है एक प्रोडक्ट की, करेक्ट? सो सेम वे, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ऑक्शंस ऑल्सो वर्क ऑनलाइन, ईबे एंड ऑल पे. ई ट्रेडिंग होता है, राइट? मीन्स ऑनलाइन ट्रेडिंग. आप देखो स्टूडेंट्स, इवन आई पर्सनली ट्रेड इन शेयर्स एंड ऑल, तो उसका जो ट्रेडिंग होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका आ जाता है स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. या, दैट इज EDI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यस, आई होप इट्स क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, EDI इज नथिंग बट, आप लोगों को पहले तो EDI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ओके, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. नाउ वर्ड्स में ही आप देख लो स्टूडेंट्स, व्हाट दे हैव बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज डेटा का इंटरचेंज. इंटरचेंज मीन्स एक्सचेंज हो रहा है, correct? So electronic data means, you all know students, basically e-commerce, electronic, this word is repeating so many times, right? So उसमें क्या कहा है कि कोई भी प्रोसेस होता है, communication is very important in any business. So ये जो flow होता है of information, that is in an electric form, राइट? जो भी बायर एंड सेलर है,
इनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है दैट इज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. Okay, I hope you all are understanding. So now if we will see students basically इसके advantages क्या है? You all can very well see on the screen students, right? Reduced inventory cost. इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? इन्वेंट्री मीन्स अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम. ओके, ऑनलाइन हो रहा है तो काफी वर्क कम हो जाता है. डिक्रीज्ड एरर. ओके, you all know the meaning. When human beings are doing the work, chances of errors are very high manual work में. ऑनलाइन होता है तो it becomes very systematic. Increased ROI, return on investment, मतलब accuracy ज़्यादा हो जाती है. करेक्ट. फिर नेक्स्ट इफ यू विल सी स्टूडेंट्स एनहांस्ड विजिबिलिटी. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? एनहांस्ड विजिबिलिटी मीन्स व्हाट? बेसिकली यू नो ज्यादा हम बोलते हैं ना रिजल्ट्स आर शोइंग इन अ पॉजिटिव वे. ओके, हम बोलते हैं ना कई बार कोई सिस्टम होती है बेसिकली राइट प्रॉपर वे में होती है तो इवन एम्प्लॉयज फील कि हाँ हम लोग जो काम कर रहे हैं इट इज बेसिकली यू नो शोइंग द रिजल्ट्स. ओके. फिर नेक्स्ट इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी मींस व्हाट स्टूडेंट्स? कई बार यू नो हमारे ऑपरेशंस में हम बोलते हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? कम पैसों में ज्यादा इफेक्टिवनेस हम लोग ला सकते हैं. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ओके. सो and increased accuracy. But now students आप you need to understand EDI जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसमें कई बार यू नो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. लाइक स्टार्टिंग में इफ आई विल टेल यू, सी यू ऑल नो बेसिकली दिस, कोई भी सिस्टम है तो देयर आर ऑलवेज सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स राइट, कि हमारा डेटा लीक हो गया तो. कई बार आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स इन द इनिशियल फेजेस यू नो इम्प्लीमेंटेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. मीन्स हम लोग ने चलो सिस्टम्स तो मशीन्स एंड ऑल वी हैव परचेस्ड, बट क्या रिजल्ट्स हमें अच्छे से मिल पाएंगे कि नहीं, दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क. ओके, प्रॉपर बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए स्टूडेंट्स. इफ आई विल टेल यू बैकअप मीन्स व्हाट? डेटा सेव करने के लिए. लाइक हाउ यू पीपल हैव, आई ऑलवेज टोल्ड यू स्टूडेंट्स राइट कि आप लोग इंटरनेट के लिए बैकअप रखा कीजिए. Right, same way, like don't depend only on your Wi-Fi. Next, if now I will tell you students, you know applications of EDI, मतलब आप देखते हो students ये EDI technology nowadays it is used in all the sectors. Like for example retail sector जो है, हेल्थ केयर सेक्टर में यूज होता है, इवन यू नो मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऐसे कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे नहीं यूज होता है. बिकॉज जहाँ पे यू नो स्टूडेंट्स कस्टमर इन्वॉल्व है, ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, तो बट ऑब्वियसली यू नो EDI इज रिक्वायर्ड. Okay, now students we will see, we are moving to the next most important, this is the last concept, most simple but again very important. Okay, website maintenance. Students, if you want this in this, okay, for MCOM students I have taken one whole lecture in detail regarding websites कि आपको websites actually create कैसे करनी है, यू नो मेंटेन कैसे करनी है. सो इफ यू पीपल वांट आप वो लेक्चर देख सकते हो MCOM का, राइट. सो हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज अ वेबसाइट. करेक्ट, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑलवेज कीप ऑन विजिटिंग वेबसाइट्स फॉर शॉपिंग. अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, नहीं विजिट किया है तो यू नो डू विजिट अ वेबसाइट. ठीक है, यू नो इट इज नथिंग बट अ प्लेस वेयर जहाँ पे आपको कंपनी का सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. यर सिंस वी आर रेफरिंग टू ई कॉमर्स आई टॉक अबाउट ई बिजनेस, मतलब शॉपिंग वेबसाइट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, आप अमेजोन पे इफ यू गो राइट, आप वहाँ पे देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर मेनी सेक्शंस, मेन, वीमेन, चिल्ड्रन. ओके, फिर उसमें से नॉर्मली आप सिलेक्ट करते हो, यू ऐड प्रोडक्ट्स टू द कार्ट, फिर आप पे करते हो. दैट इज द नॉर्मल प्रोसीजर विच अ कस्टमर सीज. करेक्ट. सो बट अगेन स्टूडेंट्स, आप अगर आप लोगों को नहीं पता है, बैक एंड में देर आर मेनी ऑपरेशंस दैट आर इन्वॉल्व इन द बैक एंड.
ओके, सो वेबसाइट मेंटेन भी करनी पड़ती है. लाइक इन द इनिशियल लेक्चर्स आई माइट हैव टोल्ड यू कि फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ वेबसाइट, ओके, सो अगर हमारे लेट्स अज्यूम इफ देर आर 100 यूनिट्स एंड उसमें से 20 यूनिट्स आर ऑलरेडी सोल्ड, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल वो जो 80 यूनिट्स रह गए हैं, वी हैव टू अपडेट दैट स्टूडेंट्स, अदरवाइज हाउ विल पीपल कम टू नो, राइट, कि इतने यूनिट सेल हो चुके हैं. सो अगेन उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इफ सम कस्टमर बेसिकली इज ड्रॉपिंग इन अ ईमेल, तो वो ईमेल का टाइम टू टाइम रिप्लाई करना है. ऑलवेज टोल्ड यू स्टूडेंट्स, ये जो टाइम होता है टिल फ्रॉम व्हेन अ कस्टमर रेजेस अ कंप्लेन टू द टाइम उसको रिजोल्यूशन आए, दैट शुड आइडियली बी वेरी लेस. ओके, राइट. सो आप देखते हो स्टूडेंट्स, वेबसाइट्स के बेनिफिट्स तो सबको पता है. ऑन 24/7 हम रात के 3 बजे भी फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू बाय समथिंग, वेबसाइट्स आर इजीली अवेलेबल, राइट. स्टोर्स जैसा नहीं है ब्रिक पैटर्न कि रात के 9 बजे स्टोर बंद हो जाता है, समथिंग लाइक दैट. उससे इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, कंपनीज की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है. मीन्स बेसिकली व्हाट हम देखते हैं ना कि एक कंपनी का वेबसाइट है, मीन्स बेसिकली मीन्स व्हाट कि हाँ वी फील के ओके दे आर अ जेन्युइन कंपनी. ओके, मार्केटिंग टूल बहुत अच्छा है. कई बार मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, वेबसाइट्स पे इवन कंपनीज कैन नो हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली विजिटेड, लोग अपने कार्ट में क्या डाल रहे, मतलब इन अ वे दे आर ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स ऑल्सो, कि कस्टमर्स को क्या ज़्यादा पसंद है, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो नाउ इफ आई विल टेल यू, कोई भी आप यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक वेब डिजाइन होती है. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सी गिविंग यू एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, समटाइम्स लाइक नाइका एंड ऑल, आप देखो मोस्टली पिंक कलर यूज किया जाता है इन द बैकग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल एक अगर मेन का वेबसाइट है, ओके, नॉर्मली ब्लू, ग्रे सच कलर्स आर यूज. चिल्ड्रन का वेबसाइट है स्टूडेंट्स, उसमें एकदम वो बेबी पिंक. अब देखो नायिका में पिंक बोल रही हूँ, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज मोर लाइक अ यू नो एकदम बेबी पिंक कलर नहीं है. इट इज लाइक नॉर्मल जो हमारे लिपस्टिक्स के पिंक होते हैं. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वो बल्ब के नीचे, आप देखो पिंक, दैट आई एम रेफरिंग टू. बेबी की वेबसाइट्स होती है उस पे एकदम वो लाइट वाला पिंक दे आर यूजिंग. अब क्यों मैं ये बोल रही हूँ इज ये वेबसाइट डिजाइनिंग में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. कलर्स, नेविगेशन. नेविगेशन मीन्स व्हाट, हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स, जो भी हमें मीन्स वॉट एवर वी आर सर्चिंग, लाइक हाउ आई टोल्ड यू बेसिकली इट शुड बी इजी टू navigate. Like how Amazon में clearly they have divided men, women, children का ऐसे, right. उसमें भी आप देखो क्लोथिंग सेक्शन अलग है, उनका जो ग्रोसरी का सेक्शन है दैट इज डिफरेंट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. फिर आप वेबसाइट पे देखो फिल्टर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, राइट. फिल्टर्स मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल आप कई बार फ्लिपकार्ट अमेजोन पे फिल्टर नहीं लगाते हो, आई ऑलवेज यूज इट कि सॉर्ट बाय प्राइस लो टू हाई, दैट इज इंडिया में आप देखो स्टूडेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिल्टर, राइट. तो इसके अलावा तो ये सब चीजें हैं स्टूडेंट्स, कंपनीज जो है कॉन्स्टेंटली नीड टू वर्क ऑन, दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड ओवर. फिर नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, तो कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देयर इज अ क्वेश्चन, लाइफ साइकिल अप्रोच फॉर बिल्डिंग अ वेबसाइट. अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन गैदर करो. आप मुझे पूछोगे कि मैम हाउ, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू बिल्ड आवर ओन वेबसाइट टुमारो, what are the things that we will keep in our mind. So आप अगर देखते हो स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली फर्स्ट यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन कि who are my target customers, what kind of content they want to see, मेरे कंपनी का पर्पस क्या है. ओके, आप देखो कई बार एनी वेबसाइट यू गो स्टूडेंट्स, देर इज ऑल्सो ऑलवेज अ सेक्शन where they write about themselves कि कितने साल पुरानी कंपनी है, राइट. बिकॉज इन्वेस्टर्स एंड ऑल ये सब चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स. ओके,
फिर आगे अगर मैं आपको बताऊं, वेबसाइट प्लानिंग, डिजाइन करना, अच्छे से डेवलप करते रहना। लाइक आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स, वेबसाइट्स जो है कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि टुडे वी हैव मेड अ वेबसाइट, टुमारो वी आर डन विद द वर्क। दे नीड टू बी कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड, राइट। कई बार हमें ये भी देखना होता है स्टूडेंट्स की जो हम वेबसाइट पे फंक्शंस डाले हैं, आर दे प्रॉपरली वर्किंग, कस्टमर्स को आसानी हो रही है कि नहीं। Yes or no, that is what is told over here. Okay, so normally if you see students, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में there is a concept of FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स की, बिफोर ऑफिशियली रिलीजिंग आवर वेबसाइट, हम लोग नॉर्मली एक टेस्ट करते हैं, राइट। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, बिफोर आवर फाइनल स्टेज वी नीड टू मेक श्योर कि सब कुछ अच्छे से है कि नहीं, because if there are still some errors, it is our duty to correct those errors first, right? So that is what is told over here. फिर आप देखते हो वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। देर आर मैनी नाउअडेज सम वेबसाइट बिल्डर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस.com करके है, विक्स.com, स्क्वायर स्पेस। वो लोग क्या करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, दे विल हेल्प यू मेक अ वेबसाइट। हम बोलते हैं ना कई बार, हमें वी एज अ कंपनी वी माइट नॉट नो ऑल द टेक्निकल थिंग्स, सो दैट इज द रीजन वाई दे आर देयर टू हेल्प अस। ओके, फिर wordpress.org, ये आपने शायद सुना होगा। देर आर मैनी ब्लॉगर्स एंड ऑल जो होते हैं, दे नॉर्मली वुड यूज wordpress.org। ओके, इस पे से भी आप अच्छी तरीके से वेबसाइट बना सकते हो। इसमें आप स्टूडेंट्स यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ SEO ऑल्सो, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। जैसे कि मैंने कहा, हाउ टू टारगेट अवर ऑडियंस इन अ मोर इफेक्टिव वे। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टूडेंट्स, तो HTML मीन्स, आई होप यू ऑल नो, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ स्टूडेंट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक Amazon एंड ऑल, यू माइट हैव हर्ड ऑफ जावा, पाइथन। मतलब क्या होता है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सो आप देखो, Amazon की वेबसाइट है, या फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स की वेबसाइट है। ये क्यों मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज सिंस मेनी पीपल आर यूजिंग इट, ओके, सो दे हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर वे में प्रोग्रामर्स जो होते हैं, दे आर हैंडलिंग दीज वेबसाइट्स। बिकॉज यू ऑल नो स्टूडेंट्स क्या है, देर आर मेनी पीपल हु वांट टू क्रिएट ट्रबल, हैकिंग एंड ऑल कितना कॉमन है आज के टाइम में, राइट। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। तो इसलिए प्रोग्रामर्स जो वेबसाइट बनाते हैं, तो मिस यूज की बात करूँ, चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ओके, प्रॉपर वे में आपकी वेबसाइट जो होती है सिक्योर्ड होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स नाउ वी आर डन। यूनिट 2 was very small, correct? So I'll now stop recording. We are now done with unit 2 for the subject ECDM. Okay, so let me stop recording.